बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाजरीन, आज सबसे बड़ी और अहम खबरें जनूबी कश्मीर के शोपियान और त्राल में रही। अलग अलग झड़पों के दौरान 7 मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकाउंटर के दौरान जाम बहक करने का दावा किया। श्रीनगर में आर्मी और पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन के बाद कहा, अंसार गज़वतुल हिंद का कमांडर मारा जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में साबिक नायब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का अपने वालिद डॉक्टर अब्दुल्ला का कोविड पॉजिटिव आने के बाद उमर अब्दुल्ला का भी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। इधर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की वालिदा पर भी अब ईडी ने समन जारी किया। 15 अप्रैल को श्रीनगर ईडी हेडक्वार्टर में तलब किया गया है। लेकिन जाते जाते हम आपको पहुंचाएंगे कि डाउनटाउन और शहर के दीगर इलाकों में खेलकूद की सरगर्मियां को अज़सर नौ दोबारा शुरू करने के लिए स्पोर्ट सेक्रेटरी नुज़हत गुल से ख़ास बातचीत। कहा, शहर के मुतअद्दिद इलाकों में अब की बार मैदानों को संवारा जाएगा और सजाया जाएगा ताकि खेलकूद से खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा हिम्मत हासिल हो सकती है। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। मुल्क के नायब सदर वेंकैया नायडू के साथ साथ वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू में एक रोज़ा कन्वोकेशन का आगाज़ किया गया। इस मौके पर जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने पर नायब सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बाद में कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने तालीमी सरगर्मियाँ, तकनीकी तालीम की अहमियत पर भी ख़ास बातचीत की। सबसे पहले नायब सदर ने जम्मू कश्मीर में तालीम और तरबियत और बड़े डिपार्टमेंटों का भी तज़किरा किया। आइए आपको दिखाते हैं नायब सदर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर के चंद इक़्तिबासात। We need to build a vibrant, resurgent India that capitalizes on its traditional strength and moves on forward by absorbing the best in the world. My dear sisters and brothers and youngsters, I am glad to note that IIM Jammu is well poised to contribute significantly to this resurgence. The institute has shown great promise for exponential growth over the last few years. This convocation is a significant milestone for the institution and the students who are graduating today. I congratulate the students of Master of Business Administration MBA program on completing their course successfully. I would also like to congratulate Professor B.S. Sahai, Director IIM Jammu, and the faculty members who have done their utmost to create congenial learning environment for students and equip them with the knowledge, skills and attitudes that will stand them in good stead in their future endeavors. I would also like to commend the parents who have encouraged and motivated their children to succeed in their academic pursuit. Dear graduating students, we are reaping the reward of your 2 years of hard work and dedication, which has brought this proud moment for you and all others associated with you. The world of immense opportunities and intense challenges are awaiting you. Opportunities are there, but challenges also are coming. The world is changing. Technology, science, research is coming with new innovations. So we must, youngsters, we must equip with more and more innovations, and then, as I told you, work for the betterment of the people. The knowledge and skills you have acquired and the values you have imbibed will enable you to successfully navigate a complex world. There is a whole new world of work and constant learning
that promises an exciting voyage of discovery for each one of you. My dear young friends, when you are going through your journey, you will realize that India is also undergoing a significant transformation. With fast-track development over recent years, our country is making great strides to fulfill the aspirations of our people. आज का यह कन्वोकेशन एक ऐसा अवसर है जहां मैं आप सभी साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि तैयारी कर लीजिए, क्योंकि क्लासरूम से बाहर निकलकर एडवेंचरस खोज वाकई अब शुरू होने वाली है। अभी तक आईआईएम का कैंपस आपने देखा, उसे पहचाना, हवाएं और मौसम को नजदीकियों से देखा। अब आपकी अज्ञात अकेले की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए साहस, आकांक्षा और बदलाहट की क्षमता, जिसे एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। आज के बाद कोई भी चुनौती आए उसे मैं अकेले निपट सकता हूं, ऐसी भावना आपके दिल में होनी चाहिए। नौजवान मित्रों, जिस पल अकेले खड़े होने की हिम्मत आ जाती है, जब आप संघर्ष और चुनौतियों से अकेले निकल कर आते हैं, धारा के विपरीत चलने का साहस आता है, तभी मैं मानता हूं कि जीवन का असली कन्वोकेशन होता है। और मैं तो मानता हूं कि बिजनेस मैनेजमेंट में चुनौतियां और बढ़ गई हैं। कोरोना महामारी के दौर में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विचार हो रहा है, वह है वर्तमान में जो संस्थान ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वह इंडस्ट्री के मांग के मुताबिक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और मार्केट की डिमांड के बीच गैप बढ़ गया है? और अगर ऐसा है तो हमने उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं? अभी जब डॉक्टर सहाय यहां थे तो उन्होंने कई ऐसे कदम जो इस गैप को भरने के लिए उठाए गए हैं, उसका विस्तार से जिक्र किया है। अभी आईएमएफ का जो आंकड़ा है, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है और 2021 में 12.5% भारत की विकास दर अनुमानित की गई है, जो चीन से भी ज्यादा है। 2022 में भी इसके 6.9% के आसपास रहने की उम्मीद है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभरेंगे। हमें अब सिर्फ यह सोचना है कि जो भविष्य के बिजनेस मैनेजर हम तैयार कर रहे हैं, क्या वह मार्केट की मांग के अनुरूप हैं या नहीं है। सभी शिक्षकों, प्राध्यापकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल सितंबर में विश्व के 700 कॉरपोरेट के बीच एक सर्वे हुआ था कि कोरोना के बाद नए रिक्रूट में वह कौन सी स्किल देखना चाहेंगे। जो टॉप 3 स्किल सेट उन्होंने बताए थे, मैनेजिंग स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन, मैनेजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तथा इंटरपर्सनल स्किल। और उनका यह मानना था कि कोरोना के बाद जो न्यू नॉर्मल वर्ल्ड आएगा, उसमें भी हर साल अप स्किल करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि अब एमबीए के एकेडमिक तथा कॉरपोरेट के बीच गहरे तालमेल की जरूरत है। पढ़ाई सिर्फ कोर्स के आधार पर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, बल्कि बाजार की मांग के अनुरूप हो, ये ज्यादा आवश्यक है। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के शोपियान और जिला पुलवामा के त्राल इलाके में अलग अलग झड़पों के दौरान 7 मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 2 अलग अलग इनकाउंटर्स में उन्हें हिलाक किया गया। सबसे पहले शोपियान में चल रही झड़प के बाद यह इतलात सामने आई कि इलाके में 3 से 5 मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद कल रात से ही मुहसरा मजीद तंग किया गया। उसके बाद 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और शोपियान से इतला थी कि आखिरी वक्त में मिलिटेंटों ने मस्जिद के पास में पनाह ली थी और बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 5 मिलिटेंट इस मार्का आराई में मारे जा चुके हैं, जबकि फौज के एक ऑफिसर समेत 4 एहलकार इसमें मजरूब हो गए, यानी जख्मी हो गए। बाद में इसके अलावा पुलवामा के त्राल इलाके में एक मुख्तर झड़प के दौरान अंसार गज़वतुल हिंद के चीफ कमांडर इम्तियाज़ अहमद शाह को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिलाक करने का दावा किया। उसका साथी भी इस झड़प में मारा जा चुका है। त्राल और शोपियान की अलग अलग झड़पों के बाद 7 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके में फौज और पुलिस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इम्तियाज़ अहमद शाह की हिलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। अफसरान ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिलिटेंटों के साथ साथ इन्होंने रिक्रूटमेंट मिलिटेंसी की ओर करने का बहुत ज़्यादा जोर दिया था और यही वजह है कि त्राल
और जनूबी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, अवंतीपोरा, कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में बेशतर अवकात में ऑपरेशन कामयाब रहे। कल इवनिंग से शोपियान में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसपीसी मिला था शोपियान पुलिस को, आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए, इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई के भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें सिर्फ टीयर स्मोक सेल डाले और बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी आईडी का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है AGH के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। फिर जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नेबुक त्राल में एक ओपन अर्चर्ड में हाइड आउट है, वहां फंसे हैं। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहां पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। साथ के साथ टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है, ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सो-कॉल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है, उसको कंट्रोल करने की काफी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की जरूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। इसके दौरान हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश है आवाम से कि हमारी मदद करें। जो हमारे कश्मीरी बच्चे रेडिकलाइज करे जाते हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनसे उनको बचाएं। इस कुछ महीने के दौरान मैंने ये भी देखा है कई परिवार अपने आप सामने आते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा है, उसको हमारे गांव से अलग ले जाइए, भले ही दूसरी जगह पे ले जाके जाएं, हो सके तो कुछ समय के लिए जेल में डाल दें उसको, ताकि वो इस गलत रास्ते के ऊपर ना चल सके। तो मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आवाम के साथ कि हमारी मदद करें, सिविल एडम की मदद करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें, ताकि ये जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है ये बंद हो और हमारा कश्मीर एक अग्रसर रास्ते के ऊपर, प्रगति के रास्ते के ऊपर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते के ऊपर चले। जम्मू कश्मीर के बिजबेहड़ा इलाके से एक और ब्रेकिंग खबर। यह है इलाका गोरीवन बिजबेहड़ा, जहां पर 35 बरस के टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर बंदूकबरदारों ने फायरिंग की है। बंदूकबरदारों की तरफ से फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद सलीम आखून, उम्र 45 बरस, जो कि टेरिटोरियल आर्मी में काम कर रहे हैं, वलद गुलाम अब्बास आखून गोरीवन बिजबेहड़ा से ताल्लुक रखते हैं। फौरी तौर पर जख्मी जवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। GMC अनंतनाग और आसपास में पुलिस ने अपने गश्त को मजीद तेज कर दिया। बिजबेहड़ा में इस हमले के बाद गोरीवन और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया और तलाशी कार्रवाई का आगाज किया गया और हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की ईडी की तरफ से पूछताछ के बाद अब उनकी वालिदा को भी तलब किया गया है। इत्तलात के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान ने आज खुद श्रीनगर में उनकी सरकारी रिहाइशगाह वाक़या फेयरव्यू में महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन नज़ीर को भी बाज़ाब्ता तौर पर 15 अप्रैल को श्रीनगर में हेडक्वार्टर पर तलब किया है। मुबैना तौर पर कई मामलात में पूछताछ के बाद महबूबा मुफ्ती के बाद इसी घराने से किसी दूसरे शख्स को ईडी ने तलब किया। साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया और महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन नज़ीर को 15 अप्रैल को ईडी डायरेक्टोरेट ऑफिस वाक़या राजबाग श्रीनगर तलब किया गया है। नाज़रीन, कोविड-19 के कहर ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। बीती रात में मुल्क में 1 लाख से ज़ायद केसेस पॉजिटिव आने के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि कश्मीर के 5 और जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फिलहाल शबाना कर्फ्यू का आगाज किया जाएगा, क्योंकि रात के दौरान व्हीक्युलर मूवमेंट के साथ साथ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर चलने पर मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू की वजह से पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वाज़िया करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ महीनों में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलने के बाद मास्क का इस्तेमाल कम होने लगा, सैनिटाइजर या सोप का इस्तेमाल कम होने लगा और समाजी दूरियों को भी हमने ट्यूलिप गार्डन से लेकर मुतअद्दिद मकामात पर पाया जहां पर कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई थी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा, शबाना कर्फ्यू का मतलब है कि आगे हमें और भी हिकमत अमली को बेहतर करना होगा। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उमर अब्दुल्ला का भी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा में मुंतकिल करने के बाद वहां 5 दिन भर्ती होना पड़ा। उसके बाद रुखसती के साथ ही जब घर पहुंचे तो अब से कुछ देर पहले बड़ी खबर आप तक पहुंच रही है कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सियासी सरगर्मियां कम कर दी है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला फिलहाल अवाम से दूर रहेंगे। नाज़रीन, जब हम शबाना कर्फ्यू की बात करते हैं और अब लोगों को बाहर आने में परेशानी तो होगी, लेकिन सेंट्रल कश्मीर से हमारे साथी मोहम्मद सलीम की इत्तला है कि इलाके कंगन में शब के दौरान कम अज़ कम 1 दर्जन के दुकानों को लूट लिया गया। कंगन के मुज़ाफ़ाती इलाके और मुतअद्दिद मकामात पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना गश्त मज़ीद तेज़ कर दिया और इस तरह से दुकानों पर हुई लूट के बाद इस मामले के निस्बत बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया है। दो से 3 बजे के बीच कुछ अफराद ने जो है लूट लिया। तो काफ़ी हसास इलाका है, बिल्कुल हाईवे के पास से ये दुकानें हैं। यहाँ पे चोरी करना कहीं ना कहीं हिम्मत वाली उन चोरों के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर चोरी करने के लिए हिम्मत उनमें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये काफ़ी शातिर चोर हैं। आप यहाँ ये दुकानों के मुआयने के लिए गए थे, क्या कुछ क्लू मिला है? अभी तो क्लू नहीं मिला। फॉरेंसिक वाले आए हैं, सीसीटीवी खंगाली जा रही है, फुटेज भी 1-2 दुकानों से मिली है। तो उन फुटेज की बुनियाद पे भी अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहीं ना कहीं कंसर्न डीएसपी साहब और एसएचओ साहब है, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी है। इधर सिंहपोरा पट्टन से हमारे साथी राही निसार की इत्तला है कि 29 राष्ट्रीय राइफल्स एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस के एहलकारों ने सिंहपोरा पट्टन में मुहसरा करके सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक इलाके में बाद दोपहर से ही सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। सिंहपोरा और आसपास के इलाके में जो कि दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पे बाज़ाब्ता तौर पर नाके लगवाने का अमल तेज कर दिया गया। बताया जाता है कि सिंहपोरा और आसपास के इलाकों में आखिरी खबरें आने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो की खुसूसी टीम ने आज सुंबल के इलाके में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दफ्तर पर छापा मार दिया। हालांकि बाद में एसीबी के अफसरान ने बताया यह रूटीन का मामला था और कोई भी रेड नहीं पड़ी है। इलाके में इस रेड के बाद दीगर दफातरों पर भी मुलाजमुन ने अपने अपने दफ्तरों का रुख करने का सफर तेज किया। बताया जाता है कि पीडीटी में कई एक मामला थे सुंबल के इलाके में, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज नजर तो मारी, लेकिन नजरें बहुत गहरी होंगी और आइंदा बड़ी डेवलपमेंट की खबरें इस दफ्तर से सामने आ सकती हैं। नाज़रीन, जिला कुपवाड़ा से हमारे साथी साहिल शमीम ने इतला दी है कि इलाके में आज मुत्तलका एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कुपवाड़ा
और सीनियर अफसरान की मौजूदगी में अवामी राबता को बहाल और बेहतर करने के लिए एक रोज़ा दरबारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मकामी पंचों और सरपंचों की बड़ी तादाद इस दरबार में शरीक थी। SSP ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाका कुपवाड़ा में अवाम और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में जो राबता या खिला पड़ा है उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि समाज में फैल रहे अनासिर का कला कमा किया जा सके। आपने खुद जनाब यहाँ सबके सामने देखा पुलिस का और आम लोगों का कितना सपोर्ट है और रल मिल के ये जो देखा आपने यहाँ लोगों का सैलाब। ये यहाँ पर पब्लिक दरबार इसलिए किया गया था कि हम सब की एक ही डिमांड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ड्रग्स को ख़त्म किया जाए। इन ड्रग्स के चाहे इसमें किसी की भी सरकार हो, इसमें कोई सिफारिश न की जाए। ड्रग्स वालों को अगर एक बार नसीहत लगेगी तो दोबारा इंशाल्लाह वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम सबका यही इशू था, इसीलिए यहाँ पे आज ये पब्लिक दरबार था। ये लोग आपने देखे, बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। पुलिस और पब्लिक का सपोर्ट आपने पूरा देखा। नाज़रीन, DDC चुनावों के बाद नताइज आए, नताइज के बाद उनका प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बाज़ाब्ता तौर पर सामने आया, लेकिन अब पंचों और सरपंचों ने जो कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं आज शहर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख किया। उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल, जो रहनुमा उसूल उनके आसपास हैं, पंचों और सरपंचों की सिक्योरिटी, एकोमोडेशन और उनके प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि DDC चेयरमैन या नायब चेयरमैन बनने के बाद जितना वोट उन्होंने हासिल किया शायद उसके मुकाबले में हमने भी उतना ही वोट हासिल किया, लेकिन ये कहाँ का तफावत है कि जब आप प्रोटोकॉल को डिफाइन करते हैं तो पंचों और सरपंचों और अवामी नुमाइंदों को भी उस खाते में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, रमज़ान के मुतबरक अयाम अब नज़दीक आया चाहते हैं। इज्तिमाई तरावीह का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर चलेगा, लेकिन शहर श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद से खबर आई कि इलाके में ये ऐलान किया गया है कि यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर तरावी नमाज अदा नहीं की जाएगी। कल ही उलमा ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बागात में भीड़ भाड़ है, लेकिन मस्जिदों में शायद मिंबर और महराब खामोश होंगे और तरावी का एहतमाम नहीं हो पाएगा। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइन जारी करते हुए इज्तिमाई तरावी पर फिलहाल तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में रोक लगा दी है और आइंदा का लाही अमल तरतीब देने में सरकार ने अवामी नुमाइंदों के साथ सलाह मशवरे का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया ताकि कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में इबादतों पर भी खलल न पड़े और इज्तिमाई सूरत हाल में इस बीमारी को रोका भी जा सके। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग ने महकमा सेहत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट कम्प्लेक्स अनंतनाग में वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों से साथ साथ जुडिशरी, कोर्ट, लॉयर्स और सीनियर जुडिशरी जो मौजूद रहती है, यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का आगाज करके आने वाले दिनों में काम को आसान तरीके से निभाया जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में खेल कूद के हवाले से गुज़श्ता हफ्ते से कुछ कोचेस को अपने क्लब से या इंडोर स्टेडियम से फारिग किया गया और प्रोफेशनल कोचेस को लाने का सिलसिला तेज कर दिया गया। दरअसल कल शाम नुसरत गुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके और मुतअद्दिद मकामात से आए हुए खिलाड़ियों की एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा, प्रोफेशनल कोचेस ही अब प्रोफेशनल कोचिंग कराएंगे। वो वक्त गया जब कुछ महीनों का सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप खिलाड़ियों के हुनर को सामने लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रोफेशनल कोचेस की कमी नहीं है। ताइक्वांडो, थंगथा, मार्शल आर्ट, कोई भी इंडोर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हो उसमें एक्सपर्ट और क्वालिफाइड कोच की जरूरत है। उन्होंने दावा किया शहर के रंगरेट, रावलपोरा, राजौरी कदल और दीगर इलाकों में स्टेडियम बनने के लिए जो हमारे पास हिकमत अमली है उसको बहुत जल्द सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर और मुख्तलिफ इलाकों में अब खेलकूद की सरगर्मियां मजीद तेज होंगी और डल झील में कौमी मुकाबले मुनक्किद कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। इस मौके पर नुसरत गुल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने रिलॉन्चिंग या लॉन्चिंग का भी आगाज किया और डाउनटाउन लीग के लिए और मुख्तलिफ टूर्नामेंट के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई कि खिलाड़ियों ने अपने पैसे खर्च करके यूनिफॉर्म रिलॉन्चिंग का मामला उठाया है। हम भी इनकी हौसला अफजाई के लिए आगे साथ साथ रहेंगे। वही सिर्फ टूर्नामेंट्स होंगे जिनमें कॉन्टैक्ट ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका क्रिकेट है, आपका फुटबॉल है, बाकी है जिसमें ये है। सी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विज़ कोविड की गाइडलाइंस हमें बनाने पड़ेंगे। हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट करता है एक प्लेयर दूसरे को, वो भी फिलहाल हमने बात किया। आउटसाइड स्पोर्ट्स जो है वो खुले हैं।
जहाँ से आपने हवाला दिया अबाउट आइडेंटिफाइंग लैंड एंड एवरीथिंग, सी गवर्नमेंट पॉलिसी इस वक्त ये है, गवर्नमेंट की बहुत ही इस वक्त थ्रस्ट एंड इम्पेटस है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फील्ड है, आपने जिक्र किया डाउनटाउन में काफ़ी हमारे फील्ड है जिनको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। आपके वसादत से मैंने अभी प्लेयर से भी बात की, बाकी जगह से बात की, जहाँ जहाँ हमारे पास लैंड है जो गवर्नमेंट लैंड है उसको आइडेंटिफाई करें, ताकि हम हर जगह देखिए जो जहाँ से खेल का तवाला गिंदुन और ये पोलो व्यू तो नहीं शहर है, अभी डाउनटाउन में आपके इतने हैं। हमारे जो ज़्यादातर जो प्लेयर्स है डाउनटाउन से वाबस्ता रखते हैं, यहाँ से नटीपोरा से है, यहाँ से हमारे HMT साइड से है, रंगरेट साइड से है, वहाँ से हमारा ये दारा निशात है, यहाँ से ज़ुकुरा है। जहाँ जहाँ हमारा होगा कि लैंड चंक अवेलेबल होगा उसमें इस वक्त गवर्नमेंट पॉलिसी है, हम आइडेंटिफाई करके जो काफ़ी एक वेमेन कोच को फिलहाल जो गिंदन पार्क के पहले स्पोर्ट्स फील्ड में पोलो में करती थी, काफ़ी मामला उस पर चले। गवर्नमेंट का क्या वजन है उस पर कि प्रोफेशनल कोच और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स आप उनको प्रमोट करेंगे और बाहर भेजने में मदद करेंगे? हम उनको भी देखिए, हम गवर्नमेंट किसी को ना बाहर निकालती है ना अंदर करती है। गवर्नमेंट का एक काम होता है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है, स्पोर्ट्स काउंसिल इज़ अ रेगुलेटिंग बॉडी, ऑलराइट। हम आइडेंटिफाई करते हैं कोचेज़ को, उनकी NIS सर्टिफिकेट्स होती है और डिफरेंट स्कीम्स में उनको लगाते हैं काम पे। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी को बाहर निकाल दिया, लाइए एक दायरे में लाइए, किसी के पास पैसे नहीं है कोचिंग करवाने के लिए, गवर्नमेंट की इस वक्त स्कीम है, हम हैंड होल्डिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करिए ऐसे जो बहुत ही टैलेंटेड कोचेड है लेकिन सिखाने का उनके पास लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। इस वक्त गवर्नमेंट क्या है बताइए मुझे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, हम उनकी मदद करके बाहर भेजेंगे, लेकिन हम सिखाएंगे बच्चे को, ट्रेनिंग बच्चे से है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो रिकॉग्नाइज्ड है ना। कल को हमारे पास कोई पेरेंट ना आए कहें कि ये जब सब चल रहा था मामला तब आपने क्यों नहीं स्टॉप कराया, तो ऐसा हम अब होने नहीं देंगे। दिस हैज टू बी रेगुलेटेड। आखिरी सवाल होगा कि खेलो इंडिया के बाद अब क्या प्रोग्राम है स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, खासकर ताज़ा डेट में? ताज़ा डेट में हमारा परसों यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खेलो इंडिया स्कीम के तहत वो आइडेंटिफाई हो चुका है। हमारा वाटर स्पोर्ट्स में कोचिंग नो इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ देश भर से या देश के बाहर से भी लोग आएंगे और ट्रेनिंग ले लेंगे। आपको मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही टैलेंट है हमारे वाटर स्पोर्ट्स में। पिछले 3 साल के आप मेडल अगर कंपेयर करेंगे कितने नेशनल और इंटरनेशनल उन्हें दिए हैं। अभी मैं वहाँ देख रही थी, पिछले दिनों में हमारा एक कैंप, नेशनल कैंप पहली बार आया जो यहाँ से चले जाएंगे थाईलैंड के लिए। ये सब चीज़ें हमारी कोशिश है कि क्योंकि हमारे अगर वाटर रिसोर्सेज है, डल है, निगीन है, वुलर है, जम्मू में हमारा रंजीत सागर डैम है, बसोली है, इनमें हम वाटर स्पोर्ट्स बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत गुल बात कर रही थी जो कि सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल है, इनके मुताबिक शहर के डाउनटाउन और अपटाउन में स्टेडियमों की तामीर और तजदीद का काम शुरू किया जाएगा और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है इंडोर गेम्स पे, जिसमें फिजिकल अपरेंस ज़्यादा है या इंटरेक्शन ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन बाकी जो खेल के मुकाबले हैं अब बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। इमरान तारिक के साथ जमुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी सोमवार 6:30 बजे। जब तक के लिए आप सब अल्लाह सोनी के हवाले हैं, लेकिन कुछ तजारती पैगामात के बाद नई दिल्ली स्टूडियो से आप कश्मीरी में खबरनामा देख पाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।